My name is Tafeem Firdos. I come from Karanagar area of Srinagar district. I did my initial schooling from Tyndall Bisco School, Srinagar. After that, I did my 11th and 12th class from Chandigarh. Thereafter, I completed my bachelor's in electronics and communication engineering from Islamic University, which I completed in 2017. Post 2017, I was preparing for civil services. I appeared in the last interview 2018 wala, jisme 70 posts were there. I reached the interview stage, and this was my second attempt at JKPSC, and I have qualified with a rank of 27 this year. So my optional subject for this year was anthropology. I would like this session to be more of student centric, and it should be a two-way process. Regarding strategy, if you want me to elaborate a little about the strategy and all, I would take the doubts directly. I believe that would make it more interactive, and that might be beneficial for all. Because since you have joined coaching, आपका सबका अभी पहला attempt है? Okay, fine. So I would directly take the doubts so that we can make, I will answer the questions in that order only. My optional was anthropology. GS तो सबका common रहेगा. तो regarding that, I would like you to ask questions. जिसका जो भी है, तो you are most welcome to ask those questions. There are two exams. It is just, one is known as the Union Public Service Examination and other is known as the Provincial Civil Services, which in normal parlance we refer it to as KS exam. It is not the KS exam, it is combined competitive exam which every state conducts. So the platform of serving and the career growth and the platform on which you serve is a little different, in the sense that in combined competitive examinations conducted by Jammu and Kashmir Public Service Commission, you will have three services to opt with. One will be Jammu Kashmir Administrative Service, another will be Jammu Kashmir Police Service, and the third one will be Jammu Kashmir Account Service. It depends upon your rank, upon your preference, which service you want to join. Police service and account service are a little specific and monotonous kind of a nature of a job hoga. Administration mein you will have 15 to 16 departments in which you can shuffle. You can join revenue department, you can join different departments, and you start at level 8 of the pay commission. Okay? So you reach somewhere around level 14. Now how it differs from UPSC is that in UPSC there are almost 20 to 25 services. 3 among those are All India services and the rest are Central Group A, and few of those services are Central Group B services. जो स्टेट सर्विस आपका होता है, दिस इज ग्रुप बी सर्विसेज. तो इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म एंड दी सर्विस कंडीशंस एंड द सैलरी थोड़ा सा डिफरेंस होता है. बट इन यूपीएससी यू हैव ऑल 3 ऑल इंडिया सर्विसेज इन विच यू कैन गेट पोस्टेड. यू विल हैव अ स्टेट कार्डर in that UPSC. So the platform is actually the difference between the two services, and eventually UPSC may be out of those 20-25 services. Your rank again and preference again will decide which service you might end up with. तो वो डिफरेंस रहेगा उसमें. और कुछ आप पूछना चाहेंगे? प्रिपरेशन, हाँ. देखिए, इफ सम कैंडिडेट इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंस 2018 we are having common syllabus for both the exams. Now wherein the difference lies in between the two exams is that the strategy of approaching the exam is a little different in terms of the number of questions you attempt. Syllabus is completely 100% same. The level of questions is almost, it is just attaining the same level. JKPSC is attaining the same level, but you have to remember the competition level between at All India level and at UT level, it is different, altogether different. I will give you an example. In UPSC, GS1 ka cutoff stays between 90 to 100. But in Jammu and Kashmir Public Service Commission, it can go as low as 30, 40, 50. Whatever it be. Matlab, it is less than 50 in the last 2 years. So, अब 50 ही अगर कट ऑफ रह रहा है out of 200 marks, तो which logically means you just have to attempt 25 questions out of 100. If you are damn sure about 25, you are in prelims. Similar lies with CSAT. The approach of attempting CSAT in Jammu and Kashmir Public Service Combined Competitive Exams and Union Public Service Commission is a little different. CSAT का level थोड़ा up है UPSC में, because they have to eliminate all India level पे competition. Jammu and Kashmir Public Service में it is just a qualifying paper in which you have to score 33% of the marks. So therein again strategy in terms of the number of questions you attempt वो थोड़ा सा differ होगा. वो चीज़ है. और पूछे all of the qualified candidates or toppers will suggest you to you start reading newspapers. But newspaper आपको तभी connect हो जाएगा when you have a basic foundation of all the basic components of your syllabus. Especially इसमें
जो GS वाला जनरल स्टडीज का कंपोनेंट होता है, देयर आर सम एसेंशियल 4 to 5 कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल, देयर इज पॉलिटी, देयर इज इकोनॉमी, देयर इज ज्योग्राफी, देयर इज हिस्ट्री, and there is environment in science and tech. You will have a know-how of the things only when you have certain basic threshold knowledge आपके पास accumulated होना चाहिए. But you can start the newspaper as of now. You will develop interest gradually, but वो connect जो आपको होगा न्यूज़पेपर के साथ, when you start making notes, what all is important, वो आपको when your foundation part वाला part is completed ना, it will take 4-5 months till your foundation part is correlated. For example, science and tech में है, मैं आपको नॉर्मली बोलूँ साइंस एंड टेक में देयर इज अ डिफेंस वाला कोई कंपोनेंट है या स्पेस वाला, यू विल से कि इसका लॉ के साथ क्या लेना देना है. तो जब तक आपका पॉलिटी क्लियर नहीं है, देयर विल बी आउटर स्पेस ट्रीटी है, एक्ट है, बिल है, लेजिस्लेशन है. तो उसका आहिस्ता आहिस्ता व्हेन योर फाउंडेशन नॉलेज और नॉलेज बेस आपका एक जब थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा, यू विल स्टार्ट टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ एग्जाम सेंट्रिक व्यू. ठीक है, तो एग्जाम सेंट्रिक नॉलेज अटेन करना, एग्जाम सेंट्रिक वोकैबुलरी डेवलप करना, it is a time taking process. After 3-4-5 months you will develop that gradually. तो अब notes के लिए what you can do is that you can refer to newspaper. Different toppers have different strategies. One size fits approach वाला इसमें scenario नहीं रहता है. किसी के लिए newspaper, it is easy to read newspaper and remember and recapitulate the facts from the newspaper. क्योंकि eventually you have to put that knowledge on paper, especially in the mains part. तो उस वाले time पे some people what they do is, जैसे मैं क्या करता था, I used to read newspaper, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, 1 घंटा आधा घंटा दे दिया, दैट्स इट. लेकिन फिर आई यूज टू सप्लीमेंट इट विद अ मंथली मैगजीन. अब मेंस के लिए आई यूज टू, मेंस के टाइम थोड़ा सा डिफरेंटली मैं उस मंथली मैगजीन को बस मेन सेंट्रिक टॉपिक्स पे फोकस करता था. प्रीलिम्स के टाइम फैक्चुअल चीज़ों पे आई यूज टू फोकस. तो व्हेन यू गेट ए नो हाउ ऑफ द एग्जाम प्रोसेस, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यू हैव टू कीप अ टैब ऑन PYQs बोथ प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए. फिर इंटरव्यू के टाइम यू विल अगेन सी, okay, things might be asked, same things will be asked, but it will be asked in a different fashion, different manner. तो वो चीज़ डिफर करेगा 3 स्टेजेस पे. इंटीग्रेटेड ठीक है, बट आपका माइंड कैसे उस टाइम पे चलेगा, दैट इज वो उस स्टेज रेलिवेंट आपको प्रिपरेशन करनी है. नोट्स आप, इट इज इफ यू फील लाइक इफ यू वांट टू मेक नोट्स, बट दो शुड बी क्रिस्प एंड कंसाइज. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग, कि क्या ये मैं जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको ये याद रखना है, क्या ये मैं एंड के लास्ट के 15 डेज 30 डेज में कैन आई रिवाइज दिस पार्ट. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. यू विल मेक न्यूज़पेपर नोट्स 7-8 बुकलेट्स पे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो देन मंथली मैगजीन भी आप यू कैन जस्ट हाईलाइट. डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वर्क फॉर डिफरेंट पीपल. आई मे टेल यू, अगर आपको कुछ यहाँ पे कोई डाउट है तो यू कैन अगेन रिटीरेट या जो यू वांट टू आस्क. करंट में आई विल टेल यू, आई यूज टू रेफर टू पर्सनली, मेरा 2017 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो देयर वाज मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड यूज टू रेफर टू इनसाइड ये विजन का मंथली मैगजीन. तो आई यूज टू फॉलो विजन मंथली मैगजीन. फिर ये होता था कि जब विजन का PT 365 आता था, तो देन आई यूज टू फील कि ओके, डू आई नीड टू डू बोथ? नो. ठीक है, अगर आपने मंथली किया है, PT 365 मेंस 365 करने की ज़रूरत नहीं है. बट यू कैन जस्ट, यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट. आप बस अपना इंडेक्स देखिए, इंडेक्स के साथ देख लिए कि सारा कवर मेरा मंथली में हो रहा है. द थिंग इज, आपने जितने रिविजन्स किए होंगे उतना आपका फाउंडेशन क्लियर होगा. और यू हैव टू प्रैक्टिस. अब प्रीलिम्स के टाइम प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ MCQs, मेंस के टाइम डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग. दैट इज व्हाट विल मतलब स्ट्रेच योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स दैट परफेक्शन वाला नहीं, बट एग्जाम सेंट्रिक और रिक्वायर्ड लेवल पे वो आपका लेवल अटेन हो जाएगा. और कोई डाउट? How to kickstart on writing? Writing answers. When is the best time to start writing? पहले यू हैव टू डू अ गुड अमाउंट ऑफ एनालिसिस ऑफ द PYQs. ठीक है, जैसे इसमें ऐसा नहीं है कि पॉलिटी पूरा GS2 इज पॉलिटी. तो उसमें पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड. ओके, पॉलिटी में देयर इज नथिंग लाइक कि पॉलिटी में 5 क्वेश्चन पूछेंगे, गवर्नेंस में 5 पूछेंगे, क्लियर कट आउटलाइन नहीं है. तो वो आपको एनालाइज करना है कि कितना कितना वेटेज सिलेबस को अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल, अगर UPSC का सिलेबस है या JKPSC का सिलेबस है, यू टेक माइक्रो टॉपिक वाला सिलेबस किसी इंस्टीट्यूट का जिसमें सब टॉपिक्स, माइक्रो सब टॉपिक्स भी मेंशन्ड है, सो दैट यू कीप अ टैब ऑन दैट. अब आंसर राइटिंग आप कैसे करेंगे? सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग. एग्जाम डिमांड करता है 10 मार्कर और 15 मार्कर. देयर वाज द प्रीवियस ट्रेंड व्हेन अ 50 मार्कर और अ 60 मार्कर यूज्ड टू बी आस्क्ड. तो इन अ 50 मार्कर अब आपको देखना है ना कि कितना ये होगा. 10 मार्कर अगर क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डायरेक्टली एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो अब उसमें इनोवेट, इट इज मोर अबाउट टाइम मैनेजमेंट इन द न्यू पैटर्न.
ठीक है, 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स, रफली 7.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो आपको सोचना भी है उसी टाइम में, लिखना भी है उसी टाइम में। वो चीज़ आपको अब एक आउटलाइन ड्रॉ करना है कि आंसर राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। बॉडी में आप पैराग्राफ ले या पॉइंट वाइज मैनर ले। इफ अ क्वेश्चन इज एनालिटिकल, अगर आपका ओपिनियन पूछ रहा है तो आप यू कैन गो इन पैराग्राफ वाइज, यू कैन प्रोवाइड मल्टीपल ओपिनियंस एंड कंक्लूड अकॉर्डिंगली। अब इफ ए क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट आर द रीजंस, देन यू गो इन ए पॉइंट वाइज मैनर। बट अगर आप पॉइंट वाइज मैनर में जा रहे हैं, यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड, यू हैव टू सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट्स। हाउ यू सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट्स? यूजिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, इलेबोरेट नहीं करना है पॉइंट को। 10 मार्कर में 150 वर्ड्स आर टू बी जस्ट टू बी रिटन, तो you just have to substantiate. For example, I'm writing a question about women empowerment. So there are these reasons. What are the reasons for low participation of women in, let's suppose, is women reservation important in Indian politics? विमेन रिजर्वेशन का टॉपिक है, तो आपको इसमें रेलिवेंट कीवर्ड्स डालने हैं, रिपोर्ट हाईलाइट करनी है, 15% ऑफ एमपीज इन लोकसभा या ऐसा करके विमेन कमीशन करना है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन वाला डेटा कोट करना है। तो रेलिवेंट डेटा कोट करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है। तो दैट इज हाउ यू गो अबाउट आंसर राइटिंग। इंट्रोडक्शन शुड बी स्पेसिफिक टू द डिमांड, कंक्लूजन शुड बी ब्रॉड एंड फ्यूचरिस्टिक। तो ये कुछ चीजें हैं विच यू विल अंडरस्टैंड विद टाइम। पहले for the first 3-4 months of your preparation, you just observe the questions, look at how toppers write. Google, you just have to Google topper copies. Synopsis तो आपको मिलता है, but synopsis से you are like कि it is not in the word limit. They are providing you the content, but how do you basically practically put up that content? वो आपको कैसे देखना है? टॉपर कॉपी होगा, 10 टॉपर्स 10 डिफरेंट स्ट्रैटेजी से लिखते हैं, कोई फ्लो चार्ट ज़्यादा यूज़ करता है, कोई डायग्रामेटिक हैंड करता है, कोई पॉइंट वाइज लिखता है। तो यू हैव टू ऑल्सो सी कि मैं किस वाले पैटर्न में कंफर्टेबल हूँ, तो देन यू कैन प्रोसीड। उतना कोई दिक्कत नहीं है, यू विल हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। येस, देयर विल बी सब्जेक्टिव बायसनेस, बट उतना चलता है। यू विल आफ्टर परफॉर्मिंग एंड अटेम्प्टिंग टेस्ट, यू विल गेट अ नो हाउ कि व्हाट क्लिक्स फॉर मी। देयर वॉज ए टाइम व्हेन द क्वेश्चंस यूज्ड टू बी अ लॉट बेस्ड ऑन द फैक्चुअल एंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज ए टाइम टिल 2015-16 आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए रेफर कर रहे थे। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चंस यू यूज टू हैंडल विद लक्ष्मी बाय रीडिंग लक्ष्मीकांत ओनली। अब थोड़ा सा पेपर का लेवल इट हैज़ बिकम ए लिटिल एनालिटिकल, तो अब आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स यू हैव टू लर्न, उसमें यू ऑल्सो हैव टू टेक रिस्क वाला एलिमेंट। तो व्हाट यूपीएससी इज डूइंग, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू जस्ट स्कोर 50% ऑफ द मार्क्स इन यूपीएससी। तो अब 50% ऐसे तो ईजी लगता है ना, कोई आपको बोले जो इस फील्ड में कनेक्ट नहीं होगा, यार 40% ही तो आपको प्रीलिम्स में लाना है, यू आर नॉट एबल टू गेट दैट इन 4-5 अटेम्प्ट्स। द थिंग इज मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आर डैम श्योर फॉर एनी सीरियस कैंडिडेट। किसी का 30 होता है, दिस इज द मैक्सिमम। उसके बाद यू हैव टू शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, किसी में आपको 2 ऑप्शंस में डाउट होगा, किसी में 3 ऑप्शंस में डाउट होगा, देन यू हैव टू रिस्क। थोड़ा सा वो रिस्क वाला एबिलिटी यू हैव टू डेवलप, वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब दिस इज अबाउट यूपीएससी। जेकेपीएससी में आप 2016-2018 का पेपर देखिए, दैट वाज मोर ऑन फैक्चुअल एंड, वो एसएसबी पैटर्न पे होता था। अब देखिए 21-22 में पैटर्न पेपर ऑफ लेवल का एनालिटिकल साइड कितना इंक्रीज हुआ लास्ट दो साल में। दैट इज द रीजन 2018 में जेकेपीएससी में प्रीलिम्स का कट ऑफ वाज 93 पॉइंट समथिंग। In 2021 it must be somewhere around 60 and in 2022 it must be roughly around 30. So कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, बट आपको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखना है कि मेरे को 30-40 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। वो आपको कैसे होगा? हाउ विल यू गेट टू नो इन द एग्जाम हॉल दैट द पेपर इज टफ? इस पेपर में कितना ऑप्टिमम लेवल रहेगा? यू हैव टू रिमेंबर नंबर ऑफ पोस्ट्स कितने हैं। तो 25 टाइम्स अगर द कैंडिडेट्स 25 times the number of candidates who are 25 times the number of posts आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। तो रफली अगर 200 पोस्ट है तो विच मीन्स अराउंड 5000 कैंडिडेट्स आर टू बी शॉर्ट लिस्टेड। यू हैव टू कीप इन माइंड ओके पिछला ट्रेंड क्या है। इधर आपका एनालिटिकल पार्ट यू हैव टू बी अवेयर। 5000 लोगों का, अब देखो GS1 में तो आपने कर लिया, अगर CSAT बहुत टफ आया तो कट ऑफ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप हो सकता है। बट थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा एक आइडिया, रफ आइडिया, ऐसा नहीं है कि आपको जैसे यूपीएससी में यू हैव टू अटेम्प्ट 70-80 तो करना ही करना है। देयर विल बी पीपल जो 60 करके 120 ला रहे हैं, बट वैसा इट इज़ रियरली इम्पॉसिबल। तो उसमें 70-80 कम करने, यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट लेस देन दैट। इफ यू हैव टू गेट, बिकॉज कट ऑफ उसका किस रेंज में रह रहा है, 90 to 100, मे बी इट माइट गो टू एज लो एज 85, बट जेकेपीएससी में आप इट इज़ क्वाइट अनप्रडिक्टेबल। द लेवल ऑफ पेपर इज
एज ऑफ यूपीएससी स्टैंडर्ड्स. सो नंबर ऑफ पोस्ट जितने आएंगे ना, तो वो चीज़ आपको नज़र में रखना है कि कितना नंबर ऑफ पोस्ट आ रहा है, उसी के हिसाब से यू विल स्ट्रैटेजाइज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू विल मेक इन द एग्जाम. बट अब आपको लेवल ऑफ पेपर कैसे समझ आएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस से होगा. जितना नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आप करोगे ना प्रीलिम्स के लिए, यू विल हैव एन आइडिया, ओके मैं कितना गेस वर्क नॉट टू बी नॉट प्रिसाइसली गेस वर्क, बट स्मार्टली आप कितना अच्छे से एलिमिनेशन एंड ऑल करने का आपका ऑप्टिमम स्कोर क्या रहता है. किसी का तुक्केबाजी बहुत स्ट्रांग होता है. इट इज़ नॉट तुक्केबाजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. स्मार्टली कैसे वो एलिमिनेट करता है, किसी का जितना उसको आता है उतना ही सही जाता है. तो वो आपको खुद चेक करना है कि मेरे लिए क्या क्लिक करता है, वो प्रैक्टिस से होगा. हाँ देखो, जब आपका वो फाउंडेशन वाला 3-4 महीने में डेवलप हो जाएगा ना प्रीलिम्स में, देन यू कैन हैव अ लुक एट. देखो जब आपको व्हेन यू मतलब डेल्व इनटू द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, यू हैव टू थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस तो करना है ना कि एम आई सूटेबल. मेरा आंसर राइटिंग पार्ट इसमें डिसाइड करेगा सिलेक्शन और मेरा इंटरव्यू करेगा. प्रीलिम्स इज जस्ट ए स्क्रीनिंग प्रोसेस. तो आपको देखना है कि मेरा आंसर राइटिंग का लेवल कितना है. एक ऐसे है उसमें मेरी एबिलिटीज़ कितनी है. तो प्रीवियस ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, शुड गिव यू एन आइडिया कि कितना डायनेमिक पेपर है. मतलब बुक से एज इट इज़ आ रहा है, एनालिटिकल आ रहा है, तो वो चीज़ आपको पहले क्रॉस चेक करना है. वाइल यू डेल्व इनटू बिफोर यू डेल्व इनटू दिस प्रिपरेशन, यू हैव टू क्रॉस चेक दैट. ठीक है, तो थोड़े आंसर लिखो, सीनियर्स को दिखाओ, फैकल्टी को दिखाओ, देन यू विल हैव एन आइडिया. थोड़े टॉपर कॉपीज़ देखो कि कैसा आंसर है. मुझे इतनी एबिलिटी है, बट कभी कभी आपको भरोसा भी रखना पड़ता है कि आई कैन डेवलप दिस थिंग. ठीक है, पहले ही दिन तो यू वोंट हैव एन आइडिया कि वेदर आई एम सूटेबल, क्योंकि 6-7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर टू बी रेड. तो वो चीज़ है. It's bound that an aspirant faces some time when he feels like giving up. Fine. So how did you cope up with those situations? देखिए इस एग्ज़ाम में साइकोलॉजिकल, दिस एग्ज़ाम बिकम्स 1-2 साल की प्रिपरेशन में इट बिकम्स अ टेस्ट ऑफ योर बेसिकली पेशेंस. ठीक है, तो यू हैव टू कीप अ टैब. जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, इफ़ यू आर ऑनेस्टली प्रिपेयरिंग, यू विल हैव एन आइडिया कि मेरा वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है. ठीक है, बट कीप ए करियर, कीप एन ऑप्शन बी अवेलेबल विद यू. पहले 2 साल ये, दिस इज माई पर्सनल टेक, पीपल माइट मतलब डिफर फ्रॉम दिस. 2 साल यू गिव होल हार्टेडली टू दिस एग्जाम. अगर 2 साल के बाद क्लिक नहीं होता है या एग्जाम नहीं होता है आपका, समहाउ प्रीलिम्स नहीं होता है आपका, क्योंकि 2 साल में यू विल हैव एन आइडिया कि मेरा क्या वीक है, एम आई एबल टू बेसिकली इवन आफ्टर स्टडिंग मेरे से क्या मिस्टेक्स हो रही है. 2 साल आई वुड सजेस्ट होल हार्टेडली दे दो इस एग्जाम को. आफ्टर 2 years or 3 years of preparation you decide, because it becomes a little dicey. और उसके बाद आफ्टर 2 years of preparation आपको फुल टाइम नीड नहीं है. देयर विल बी कैंडिडेट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पार्ट टाइम में ही, मतलब इन जॉब ही एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं. ठीक है, बट 2 साल किसी का एबिलिटी डिफरेंट होता है, किसी का टाइम लग जाता है कोई कंपोनेंट समझने में, बट 2 साल दे दो होल हार्टेडली. 2 साल के बाद यू विल हैव एन आइडिया कि ओके अब मेरे को कितना टाइम चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक यू नीड 12 hours फॉर, मतलब मैंने 12 घंटे पिछले 6 साल में पढ़ा है, ऐसा नहीं था. इट वॉज इनिशियली फॉर द फर्स्ट 2 years दैट आई वॉज लाइक फुली डेडिकेटेड. उसके बाद आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ फ्रीलांस वर्क एंड ऑल. तो वो चीज़ें आप कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ऑप्टेड फॉर मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, आई डिड ए UGC नेट JRF उस वाले सब्जेक्ट में. तो आई वॉज ऑल्सो मतलब इंटरेस्टेड इन डूइंग अनदर PG, सो दैट आई विल कीप सम करियर ऑप्शंस ओपन, मे बी रिसर्च, मे बी समथिंग एल्स, मे बी पब्लिक पॉलिसी. तो you need to have a backup option with you. Graduation, whosoever is in right now in graduation na, don't take it lightly. ठीक है, even if you are preparing for civil services, you will face questions from your background in interview, and that time they will tell you okay what is your backup option. जैसे मुझे पूछा गया इस बारी, if this does not click for you, what will you do? तो I clearly told them maybe I would opt for higher education. I have a backup career option, मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ था. तो maybe if not that I would go into data science and all, जो मेरा अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था. तो दे कुड हैव आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एरिया टू मी. तो आपको साइकोलॉजिकली आपको टेस्ट करना है ना कि मैं कितना विद स्टैंड कर सकता हूँ प्रेशर. वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टेस्ट बन जाता है 1-2 साल की प्रिपरेशन के बाद. यू गेट सैचुरेटेड, यू फील लाइक एवरीवन इज मूविंग ऑन. तो वो चीज़ है. कीप ए करियर बी आफ्टर 2 years ऑफ प्रिपरेशन. बट दोज हूसोएवर इज इन ग्रेजुएशन राइट नाउ ना, प्लीज़ उसको लाइटली ना ले. Dedicatedly you pursue that. You can prepare for civil services simultaneously. Usme there is no harm in that. But the exam unpredictability of this exam, because at the end of the day some 35,000 students appeared and some 91 candidates from open merit got in. 35,000 से 91 in open merit.
So you can well imagine कि competition level कितना ज़्यादा है. You need to have a career backup. There are candidates, I have friends who started from Panchayat accounts assistant in last year, then they reached assistant registrar cooperative, and then they within 3 years they qualified exams from level 5 to level 8. ठीक है, तो simultaneously crowd is pursuing different kind of मतलब competitive exams. तो keep a option B after some amount of preparation जब आप करेंगे. डेली का देखिए, इट डिपेंड्स इफ समवन इज, देयर आर टू ऑप्शंस, वन इज सेल्फ स्टडी, अनदर इज कोचिंग वाला. ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ यू फील लाइक, आई सजेस्ट पर्सनली सजेस्ट कि पहले यू सी टॉपर स्ट्रैटेजीज, ट्राई टू गेट गुड गाइडेंस. इफ यू फील लाइक मेरे से सेल्फ स्टडी हो रहा है, क्रॉस चेक करते रहो साइमल्टेनियसली, डू प्रैक्टिस. अभी के टाइम पे एवरीथिंग इज ऑन अवेलेबल ऑन ये ऑनलाइन. बट उसके बाद इफ आफ्टर 1 month ऑफ प्रिपरेशन यू फील लाइक कि आई एम नॉट मोटिवेटेड या मुझे कॉम्प्रहेंड नहीं हो रही ये चीज़ें, देन यू ऑप्ट फॉर कोचिंग. ठीक है, फिर कोचिंग में भी इट इज़ लाइक कि मैंने 6 महीना कोचिंग किया, 6 महीने के बाद मुझे लगा कि आई हैव रीच दैट थ्रेशोल्ड, आई कैन नाउ क्विट कोचिंग. ठीक है, तो ये आपको पर्सनल एनालिसिस करना है कि व्हाट ऑल डू यू रिक्वायर ऑनेस्टली. अब आप टाइम का बोल रहे हैं ना, टाइम का आप देखिए, पहले कोचिंग में इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर क्लासेस, यू विल हैव क्लासेस फॉर 5-6 आवर्स, तो उसमें 5-6 घंटे ही आपका फिर सेल्फ स्टडी में एफिशिएंसी रहेगा. देयर विल बी कैंडिडेट्स जो 10 घंटा भी पढ़ सकते हैं, बट आपको ये भी देखना है ना, अगेन इंडिविजुअल सेल्फ यू हैव टू चेक कि मुझसे कितना एफिशिएंटली हो पा रहा है. ठीक है, मैं पहले अटेम्प्ट में जब कोचिंग जा रहा था, मेरा जीएस क्लास भी होता था, ऑप्शनल क्लास भी होता था, शाम को मैं सोच रहा था अब मैं ऑप्शनल भी पढ़ूँ, अब मैं जीएस भी पढ़ूँ, बट हो नहीं रहा था. फिर इवेंचुअली आई स्टडीड ऑप्शनल अच्छे से इन डेप्थ. पीपल वेर सजेस्टिंग मी टू टेक अप इग्नो के नोट्स. ठीक है, तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. You have to be mentally ready कि exam will take 1.5 year of preparation itself, then 1 more year to basically appear in the exam. First of all, we would like to thank you all for answering. माइक तो नहीं चाहिए आपको, माशूक प्लीज माइक पास interact with you. So, sir, as you earlier said that you have done your BTech after +2, and you have taken your optional subject anthropology. Sir, my question is that how we overcome this confusion to take as an optional, and which subject we choose that we have to take for optional. Correct. So although my score was in the top 5 that year 2018 में, it was like 233. Overall sociology में highest was, if I am correctly able to recall, it was 259. Anthropology में it was 278. तो for me those 20 marks, I was like कि ये 20 marks, is it that I need to improve my subject, or is it that there is something inherently in the subject, मतलब apart from sociology, which is scoring. ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इफ़ यू गो विद साइंस सब्जेक्ट्स, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू JKPSC, इफ यू टेक अप साइंस ऑप्शनल्स, यू हैव एन इनहेरेंट एडवांटेज ऑफ स्कोरिंग वेल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अप zoology, there is a very minimal amount of risk that you are taking up if you take up zoology, if you take up anthropology, but if you attempt physical part in anthropology, अगर आप सोशो कल्चरल पार्ट एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, देन इट इज़ सिमिलर टू सोशोलॉजी. तो ह्यूमैनिटीज़ में सब्जेक्टिव बायसनेस का बहुत ओपिनियन मैटर करेगा. ठीक है, तो विच इज़ अनलाइक इन साइंस सब्जेक्ट्स, आपको क्वेश्चंस में करेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे, यू आर कोटिंग द करेक्टरिस्टिक्स एज इट इज़, डायग्राम भी डाल रहे हो, तो उसमें यू आर मिनिमाइजिंग दैट रिस्क. इन साइंस सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल किसी का मैथमेटिक्स है, अब आपने 500 मार्क्स में पूरा 500 अटेम्प्ट किया है, किसी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो देयर इज वेरी मिनिमल रिस्क विद रिगार्ड टू सब्जेक्टिव बायसनेस. तो वो चीज़ अगर आप रिड्यूस कर पाओ, बट दैट डिपेंड्स अगेन इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट. इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी है, बट ट्रेंड भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. तो वो चीज़ है, आई फील कि ह्यूमैनिटीज़ में इफ़ यू आर नॉट अप टू द मार्क, देन यू आर रिस्किंग योर सेल्फ. तो वो चीज़ है. अब आप कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, यू शॉर्टलिस्ट 3-4 ऑप्शनल्स जो अच्छे से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे, देन गेट इन कॉन्टैक्ट विद पीपल हु हैव क्वालिफाइड वाया दैट ऑप्शनल. फिर थोड़ा उनसे गाइडेंस लीजिए, फिर थोड़ा सा एक एनालाइज कीजिए कि कितना अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन है. ठीक है, कभी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अगर कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी में है, तो ही विल फील कि मेरा कैलिबर, सर हैज़ क्वालिफाइड फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी, तो आई कैन वेल कनेक्ट विद हिम. ठीक है, तो कभी कभी समवन इज फ्रॉम IIT, तो आपको कभी कभी लगता है कि यार शायद इसका लेवल हाई है, तो यू कनेक्ट विद पीपल, डिफरेंट पीपल, सो दैट आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए कि मेरे साथ क्या, मैं किन के साथ कनेक्ट अच्छे से कर पा रहा हूँ. बट
ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ऑप्शनल डिसाइड कीजिए. माई सजेशन इज 5-6 दिन, गिव इट टू 2-3 ऑप्शनल्स. आफ्टर यू शॉर्टलिस्ट 2-3 ऑप्शनल्स, फिर देखिए इंटरेस्ट कितना है मेरा. फॉर एग्जाम्पल अब एंथ्रोपोलॉजी लेंगे, आपको डायग्राम पार्ट में इंटरेस्ट नहीं है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, देन इट विल बिकम हरक्यूलियन टास्क फॉर यू. मतलब देर आर सम, मतलब अप्रॉक्सीमेटली व्हाट आई फील 1000 पीपल मस्ट हैव रिटन फ्रॉम वाया एंथ्रोपोलॉजी. 1000 में से कितनों का सिलेक्शन हुआ? सम 40-50, 950 का तो नहीं हुआ ना एंथ्रो से भी. तो इट इज नॉट लाइक दैट. सोशियोलॉजी से भी हुआ, हर सब्जेक्ट से हुआ, बट किसी सब्जेक्ट से कम होता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट एडवांटेज ऑफ ए सब्जेक्ट. तो जोलॉजी से इफ कैंडिडेट्स, ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फ्रॉम जोलॉजी, माई लॉजिक सेज कि जोलॉजी से पॉसिबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग इज हायर. या बॉटनी से, साइंस सब्जेक्ट से है इनहेरेंट एडवांटेज है, बिकॉज डायग्राम पार्ट है, थिंग्स कम एज इट इज. सब्जेक्ट स्टैटिक होता है साइंस वाला, उसमें 2-3 अगर डायनेमिक क्वेश्चन भी आए, बट एज इट इज यू कैन राइट आंसर्स टू दैट पार्ट. वो चीज़ है. किसी का मैथमेटिक्स है, वाई नॉट टेक अप मैथमेटिक्स. किसी का फिजिक्स है, वाई नॉट टेक फिजिक्स इफ यू आर गुड एट. तो कंफर्ट लेवल चेक करना भी जरूरी है, ट्रेंड अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है. उसके बाद टॉपर्स के साथ यू कनेक्ट विद देम, सी हाउ वेल दे आर एबल टू पुट अप थिंग्स. तो फिर चेक कीजिए खुद को कि मैं इतना लेवल अटेन कर सकता हूँ या नहीं. They're very toil taking examination. So we need to give our everything. So how does one manage? So may I ask you in terms of absolute proportionality, like in terms of percentage, how much percentage do you do? देखिए, द आइडिया ऑफ क्वालिफाइंग सिविल सर्विसेज, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वेयर इन आई कैन प्ले अ रोल. माई आइडिया बिहाइंड क्वालिफाइंग सिविल सर्विसेज वॉज, मैं काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्टेड, छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट होता था मेरा. ठीक है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है. तो देन इवेंचुअली व्हेन आई इंट्रोस्पेक्टेड, इट वाज ऑल बिहाइंड द लॉजिक वाज पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी अंडरस्टैंड करना, कोई भी हमारे नेबरहुड में कोई भी चीज़ है, तो बैक एंड पे क्या हो रहा है? बैक एंड पे तो पब्लिक पॉलिसी है. फिर डिलीवरेंस, सिविल सर्वेंट्स कैन सर्व इन बोथ वेज. आप बैक एंड पे भी काम कर सकते हैं, आप फ्रंट एंड पे भी काम कर सकते हैं. तो पॉलिसी लेवल मेरे लिए मोटिवेशन था पॉलिसी मेकिंग में. ठीक है, कि कैसे चीज़ें हो रही है. तो दैट वाज समथिंग दैट फैसिनेटेड मी टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज. और एक वो कम्युनिकेशन गैप, ये है ना कम्युनिकेशन वाला, जो इन माई स्कूल लेवल आई यूज टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स. आई वॉज स्कूल प्रीफेक्ट एट माई स्कूल. फिर वो चीज़ मेरे कॉलेज लेवल में भी आ गया. तो कॉलेज लेवल में भी आई वॉज इन टू प्लेसमेंट एंड ऑल. तो आई फेल्ट कि आई हैड दोज थिंग्स कि मुझे मज़ा आता था ये सब चीज़ें ना, मतलब. बट एग्जाम क्वालिफाई करना इज अ डिफरेंट, देन एग्जाम इज अ वे वाया विच यू कैन अटेन दैट पोजिशन. ठीक है, तो वो चीज़ मोटिवेट, मतलब वो चीज़ मोटिवेट, दैट केप्ट मी मोटिवेटेड इन परस्यूइंग दिस थिंग. फिर मुझे ये भी लगता था, अब जैसे एग्जाम क्वालिफाई करने का जो है ना, आई यूज टू फील कि ये कॉम्पोनेंट भी मैंने कवर किया, ये भी किया, आंसर राइटिंग भी आई वॉज कंफर्टेबल विद. तो वो चीज़ें फिर जब आप मेहनत करते तो रास्ते भी ऑब्वियसली खुल जाते. तो यू फील कि ओके, यहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना है. बट ये है कि एक चीज़ याद रखना, दिस इज़ नॉट दी ओनली प्लेटफॉर्म दैट यू कैन, मतलब सर्व वाया विच यू कैन सर्व पीपल. देर आर प्रोफेशंस जिसमें देर इज ह्यूज इनॉर्मस ग्रोथ. ठीक है, ये अब आपका इंडिविजुअल सेल्फ है, मतलब व्हाट फैसिनेट्स यू एंड मोटिवेट्स यू. उतना भी ज़्यादा नहीं है. सिविल सर्विस इज ऑल्सो वन ऑफ द मीडियम्स. देर आर ऑल्सो अदर करियर ऑप्शंस. डोंट थिंक लाइफ में देर विल कम अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू बी रेडी. अगर मेरा नहीं क्लिक होता, बिकॉज वही अगेन मैंने आपको बोला, सक्सेस रेशो देखिए कितना कम है ना. तो यू हैव टू ऑल्सो, वो चीज़ है कि रेस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन. ग्रोथ हर चीज़ में है. देखिए, जब मैंने पहले अटेम्प्ट में सोशियोलॉजी लिखा, फाइन, तो इन सोशियोलॉजी व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज दैट whenever a question comes na, you have to be, that answer should be completely yours. Every time you write up sociology na, although easy question hota hai, there is a very fine line between sociology answer and a GS answer. So the way sociological language was missing in my matlab answers, I felt so. So to develop that sociological language, it takes you to basically put up different schools of thought in your answer. But अब कितना करें? कभी कभी अंडर रिप्रेजेंट होते थे थिंकर मेरे आंसर में, कभी कभी ओवरलोड होता था. तो वो ऑप्टिमम लाइन जो बैलेंस था ना, आई डिड नॉट फाइंड इट मतलब कंफर्टेबल. वो जो एक बायसनेस मुझे लगा ना कि इवन आफ्टर राइटिंग मेरे हिसाब का गुड आंसर, आई वॉज नॉट, मे बी इवेलुएटर वुड नॉट बी सेटिस्फाइड. सो आई फेल्ट कि लेट मी चेक एंथ्रोपोलॉजी. इफ द सब्जेक्ट इज अ लिटिल स्कोरिंग, इवन आई वॉज बेसिकली इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप जोलॉजी,
बट आई फेल्ट द सिलेबस थोड़ा ज़्यादा था. सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में मेरे लिए क्या था कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में 50% 60% कन्वर्जेंस था सोशो कल्चरल पार्ट में. तो आई थॉट लेट मी अटेम्प्ट अ बिट ऑफ मोर फिजिकल पार्ट इन वाइल अटेम्प्टिंग पेपर 1, थोड़ा सा मोर आर्कियोलॉजी पार्ट which will make it a little scoring. I just wanted a stable score, to be honest. I did not expect anthropology से मैं 300 नहीं expect कर रहा था. I wanted कि मेरा 260, 270, 280 की रेंज में स्कोर आ जाए एंथ्रो से, जो कि सोशियोलॉजी में थोड़ा मुझे लग रहा था कि रिस्क है. तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज, क्योंकि यहाँ एवरी अदर पर्सन वॉज टेकिंग अप एंथ्रोपोलॉजी, तो जस्ट टू स्टे एट दैट साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस पोजिशन, आई फेल्ट कि नहीं, आई हैव एंश्योर्ड कि अगर मेरा इसमें एवरेज स्कोर भी आ जाता है, आई विल बी एट अ बेटर साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड. देखो, एट टाइम्स एक सब्जेक्ट में इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल स्टडिंग पॉलिटी सप्लीमेंटेड विद अ डिफरेंट ऑप्शनल विद अ डिफरेंट सब्जेक्ट, थोड़ा सा लाइट हार्टेड भी एक सब्जेक्ट पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, कुछ इकोनॉमी का कुछ पार्ट पढ़िए, तो थोड़ा सा मिक्सअप कीजिए, बट गेट टू नो द पल्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. ठीक है, हर सब्जेक्ट का अपना अप्रोच है, वो अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरी है. जब आपको लगा ना कि मैंने पॉलिटी कर लिया, फिर आप ज्योग्राफी डिफरेंटली पढ़ना है, तो वो चीज़ पल्स, अंडरस्टैंडिंग द पल्स इज इंपॉर्टेंट. आई होप बाकी क्वेश्चंस अब ओवरलोड हो जाएगा मेरे साइड से. देयर आर अदर पैनलिस्ट्स. अब देखिए, वाइल यू आर परस्यूइंग ग्रेजुएशन ना, मैंने जैसे बीटेक किया हुआ था, मेरा CGPA समवेयर अराउंड 9 था. ठीक है, तो आई वॉज वेरी सीरियस ड्यूरिंग माई बीटेक टाइम बिकॉज आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ अपेयरिंग इन GRE एंड मूविंग आउटसाइड. ठीक है, तो ऑल दो अब 4 साल की प्रिपरेशन के बाद इफ दिस ईयर आई वुड नॉट हैव क्वालिफाइड अगेन, तो 4 साल से तो मुझे भूल गया बीटेक, बट एक कंफर्ट जोन था ना कि मैंने तब पढ़ाई की है. Maybe it might take me 5-6 months again to revise and recapitulate those things. But एक confidence level था कि मैंने उस टाइम पढ़ा है. तो वो psychological state of mind, when you see ना, you stay positive उस चीज़. आप बैक एंड पे भी काम कर सकते हैं, आप फ्रंट एंड पे भी काम कर सकते हैं. I think कि मतलब अगर even if while in graduation if you are dedicating 1.5 hours of preparation to civil services ना, that is fine. बाकी टाइम you keep online है ना, ऑनलाइन का ज़माना है, फ़ोन पे टैब रखो, थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लो फ़ोन पे, MCQ कर लो, बहुत प्लेटफॉर्म्स के MCQs आते हैं, वो करते रहो. शाम को फिर एक कंपोनेंट पढ़ लो, बिकॉज इट विल बी हार्ड फॉर यू. अब इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है. कोई MBBS कर रहा है, उसमें तो सांस लेने की जगह नहीं है. तो अब आपका जोलॉजी है, तो लैब वर्क है, आपका सैटरडे संडे है, वो आप उस अकॉर्डेंस में देखिए. थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट इंशाल्लाह थिंग्स विल ईज आउट विद टाइम. बाकी आप बाद में हम बात करते हैं. ठीक है, थैंक यू.